ये हो गया था. जावा इज इन्वेंटेड बाय जेम्स गॉस्लिंग. इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Heart of Java's platform, JVM, Java Virtual Machine. When the source code is compiled, dot class file, first one. Then a group of classes and interfaces. Package, okay. Package क्या है? It is a group of classes and interfaces. Byte, one byte. Which statement is known as case control statement? Switch statement, okay. Then next, which is an entry control statement? While statement, okay. Condition देते directly. Copy of class which occupies memory. See the options. Object is a copy of class which occupies memory. Then defining two or more methods. Two or more methods in a class share the same name but different parameters. मैं तो overload. What is the output? हम लोग just देख लेते minus plus 7 plus 2 9. Okay. Next कौन सा है? हाँ ये वाला क्या था? A equal to because A equal to A minus 3 ऐसा assignment operators. तो first one answer है 220. Admit करो. Then our domain, and then we have taken that function. Okay, now see how many minimum number of operands. Okay, comparison के लिए 2 minimum. Rare type of output of any comparison operator in Java. Boolean true or false ही रहेगा ना. Compare करें condition true होगा तो false होगा. True and false comes under Boolean. नेक्स्ट कौन सा है? ये कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. यस राइट. एंड नेक्स्ट आउटपुट ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेशन. अगर बोथ दी इनपुट आर 1, अगर बोथ दी 1 से तो एंड में क्या होता है? 1 होता है. यस राइट. इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट एक्सेप्ट डैश एज इनपुट बिफोर ब्रांचिंग. बूलियन. इफ और एल्स इफ हम लोग क्या कंडीशन वी आर गिविंग. कंडीशन का ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. दैट मींस बूलियन वैल्यू. ओके. The condition of an if statement is false, which is true below. As block is executed. Yes, right. Then a switch case statement Java is also called as which type of control statement? Iteration includes selection. Iteration में क्या आएगा? If else if nested if. ये सब iterations हैं. ये तो selection statement. Yes, right. Arun Sarfaraz. Selection statement. And what is the output of the below Java program? Switch में 15 दिया. 10, 15, 20. 15 आया ना because 5 multiplied by 4, 20, 20 minus 5 is 15. So this line will be executed. Second line will be executed. Second line क्या है? 15 है. Okay. Then correct syntax of the while. A देख लो, B है, C है, D none. A is right. While है condition है, then block. सेकंड में क्या दिख रहा है? सेमीकोलन. सेमीकोलन क्या होता है while के आगे? थर्ड में while के आगे कंडीशन ही नहीं है. ओके. While loop in Java executes the statements at least one even the condition is not satisfied. ये डेफिनेशन करेक्ट है क्या while loop का? while loop में false है. do while loop में फिट बैठता है. ट्रू स्टेटमेंट है do while का. क्या बोला? while loop जो है कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ फिर भी एक बार प्रिंट होता है स्टेटमेंट. होता है क्या? नहीं होता है. वो कहाँ पे होता है? डू while loop में होता है. बिकॉज while loop में क्या होता है? कंडीशन तो हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं. कंडीशन का फॉल्स तो एंटर ही नहीं करेगा. एक बार भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा. और डू while loop का सिंटैक्स कैसे है? पहले डू है देन कंडीशन है. तो एक बार तो एग्जीक्यूट होना है देन इट विल चेक दी कंडीशन. अगर इफ आई एम मेकिंग दिस डू while loop तो क्या होगा आंसर? डू while में ट्रू. while को इफ आई एम डूइंग द चेंजेस डू while ट्रू हो जाएगा. ओके. नाउ इट इज फॉल्स. which is a file extension used for a compiled Java class file, not extension of Java. Extension of Java is everyone knows this .java. A compiled Java class file का क्यों? कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल जनरेट होता है. पता है ना? कंपाइल करेगा बाइट कोड फाइल जनरेट होता है क्लास फाइल. उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास. कौन सा होता है? डॉट क्लास. यहाँ देखे थे हम लोगों ने. सी
अभी ई में वी हैव सेव्ड मेनी प्रोग्राम्स ना, ई ड्राइव में सिंपल करके भी प्रोग्राम था, उससे बहुत सारे प्रोग्राम्स है। सी हमारे प्रोग्राम से पूरे अभी 2 फाइल लिखना, क्लास में जावा फाइल, तो ये तुम्हारा नोटपैड फाइल है, प्रोग्राम लिखा हुआ तुमने सेव किए, सपोज आई हैव सेव्ड इन ई ड्राइव। तो जैसे ही आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम इन नोटपैड हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, सेव करने का व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपाइलिंग द प्रोग्राम, ठीक है, तो कंपाइल फिर रन करते हैं, राइट। तो कंपाइल करने के बाद ये फाइल अपने आप क्रिएट करता है, कंपाइलर क्लास फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। कौन सा फाइल क्रिएट करता है आफ्टर द कंपाइलेशन, क्लास फाइल। तो इसका अगर तुम एक्सटेंशन देखोगे डॉट क्लास है, क्या है, डॉट क्लास है। इसके अंदर देखो ये बाइट कोड है, इसको रीड करना भी नहीं जाएगा, बाइट कोड फाइल है, ओके। ये किसने क्रिएट किया है, आफ्टर द कंपाइलेशन इट इज क्रिएटेड बाय हूम, जावा वर्चुअल मशीन। किसने क्रिएट किया है, जावा वर्चुअल मशीन में, ओके। क्या आएगा, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर द कंपाइल्ड जावा क्लास फाइल, तो डॉट क्लास। अगर ऐसा होता विच इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर जावा, डॉट जावा होता, ओके। नाउ इट इज डॉट क्लास। इन जावा द कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास इज, कौन सा वाला, थर्ड ना, सी कैपिटल नहीं होता है, ओके। थर्ड वन इज करेक्ट, दिस वन यहाँ राइट दिया ना, वो करेक्ट है। The keyword used to create a new object. New keyword, right? Overloading of constructor in Java means adding more than one. अगर more than one constructor होगा, that means constructor overloading है. If you are creating more than one constructor, that means constructor overloading. Okay. Overloading of constructors in Java means adding more than one constructor with different argument keys. More than one means कितना भी होगा, 2, 3, 4. But more than one हो गया, that means constructor overloading. Okay. Then in standalone Java application, which method is mandatory? Compulsory कौन सा है? Main, show, display, print. We know that कि main क्या है, ये mandatory method है, right? Answer क्या आएगा? Main आएगा, right? Main method, okay, first one. Public static void main, लिखते ना ये लाइन, वो मेन मेथड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट एरे, तो वो मेन मेथड वो वाला लाइन को बोल रहा है, ओके। तो मेन मेथड इज मैंडेटरी। देन नाउ चूज अ सिंगल लाइन कमेंट इन जावा लैंग्वेज। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फर्स्ट, ओके, राइट, फर्स्ट वन करेक्ट है, सिंगल लाइन कमेंट। एंड व्हाट डज जेवीएम स्टैंड्स फॉर, जावा वर्चुअल मशीन, सेकंड वन, ओके। What is portability offered by Java language? See, Java language का portability is the feature of Java. किसका feature है? Feature of Java. Okay. See, portability means ये है independent, platform independent. हाँ, third one correct है। Portability का meaning क्या है? Platform independent. Okay. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट है। सी पोर्टेबिलिटी मींस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये वाला आंसर देखो, एबिलिटी टू रन द बाइट, जो बाइट कोड फाइल नहीं है हमारा क्लास फाइल, ठीक है। एबिलिटी टू रन द बाइट ऑन डिफरेंट मशीन्स प्रोड्यूसिंग द सेम बिहेवियर आउटपुट, मींस वी कैन रन द बाइट कोड फाइल ऑन डिफरेंट मशीन्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग दी बिहेवियर उनका सेम ही रहेगा, विल गेट द सेम आउटपुट ओनली। पोर्टेबिलिटी मींस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही हुआ ना, बिकॉज वी आर एबल टू रन द बाइट कोड फाइल, जो क्लास फाइल है, ऑन डिफरेंट मशीन्स, देन वी विल गेट द सेम आउटपुट। तो कौन सा करेक्ट है, थर्ड वाला। व्हाट इज द जावा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप यूज्ड टू बिल्ड वेब ऐप इन जावा? सी डिफरेंट एडिशंस है जावा के, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, फुल फॉर्म याद रखो, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, माइक्रो एडिशन, एम्बेडेड, ठीक है। हम लोग अपने प्रैक्टिकल के लिए वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड एडिशन। कौन सा स्टैंडर्ड? व्हेन यू विल गो इन टीवाई यू विल यूज दिस एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, ओके। अभी सी अगर वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो विच एडिशन वी विल यूज, वो एम्बेडेड एडिशन। हाँ, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जावा एंटरप्राइज एडिशन, बिकॉज वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है ना, तो ये वेब एप्लीकेशन में एनी वेबसाइट इफ यू वांट टू क्रिएट वी विल यूज एंटरप्राइज एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन क्या बेसिक है, बेस है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बेस है स्टैंडर्ड एडिशन। तो एंटरप्राइज एडिशन से क्या कर सकते हैं, वी कैन बिल्ड दी
web applications. We can build the web applications. Okay. SE में basic we can create basic websites. और डायरेक्टली यहाँ पे के लिए बिल्ड करना है ना, अगर पूरा बिल्ड ही कर देना वेब एप्लीकेशन को रेडी करना है वेबसाइट, तो वी विल यूज एंटरप्राइज एडिशन. क्या यूज करेंगे? एंटरप्राइज एडिशन. टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस वी विल यूज वेब एप्लीकेशन. समझ रहे हो ना, वेबसाइट. ओके. अच्छा ये बताओ, अभी इसको रीड करके बताओ, चैट बॉक्स में आंसर क्या आएगा इसका? Java C hello dot Java. कंपाइल करने व्हाट इज द सिंटैक्स? Java C hello dot Java. सेकंड वाला फिट बैठ रहा है सिंटैक्स में. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, तो यही फिट बैठ रहा है ना. क्लास नेम में हेलो यहाँ पे प्लेस कर दिया है बस. ओके. तो जावा सी ये सिंटैक्स के अकॉर्डिंग है, राइट. जावा सी क्लास नेम डॉट जावा. सपोज क्लास नेम इन्होंने हेलो लिए ना, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है. इसमें सी नहीं है, इसमें कॉम्प लिखा है, इसमें सीएमडी लिखा है, नहीं है ना. कंपाइल का सिंटैक्स पूछा है. What is the command used to run a Java program? Java class name. Java class name. तो ये फिट बैठ रहा है. Okay. Java hello. Yes, right. Java third option. The type of arguments a main method accept is string. String है पक्का? Okay. String correct. Okay, because public static void में हम लोग क्या लिखते हैं? String ना, bracket में. तो string correct answer है. The delimiter used to separate command line argument in Java is used to see बराबर पढ़ो उसको. Used to separate command line argument. Ma'am, arguments are the parameters. First option. हाँ, arguments means parameters. The delimiter used to separate command line arguments in Java. Okay, this answer reply in the chat box. Colon सबका अलग अलग आंसर है. Space. Okay. क्या रहेगा? Space, 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 colon, colon. स्पेस था बहुत लोगों का. हम लोग स्ट्रिंग और स्पेस देते हैं ना हम लोग. डिलिमिटर यूज्ड टू सेपरेट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इन जावा. सी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स मतलब वो वाला कंसीडर मत करो. हाँ, कमांड लाइन आर्गुमेंट बोला. कमांड लाइन मींस तुम्हारा ये कमांड लाइन, ये है कमांड लाइन आर्गुमेंट. यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखते तो व्हाट वी आर गिविंग स्पेस ओनली ना, कि कॉमा सेमीकोलन देते बैठते ऐसा नहीं ना. तो कुछ भी कमांड देने के लिए वी आर यूजिंग द स्पेस ओनली, सेपरेटेड बाय स्पेस ओनली, कुछ भी लिखने के लिए. ओके. ये है कमांड लाइन. आंसर क्या आएगा? स्पेस आएगा. ओके. ये बताओ अभी, चलो मेन मेथड का करेक्ट सिंटैक्स क्या है? थर्ड वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. थर्ड में तो मेन ही नहीं है. फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है? पहले आइडेंटिफाई करो. आर्गुमेंट्स के बाद हम लोग स्ट्रिंग के बाद थोड़ी देते हैं. आर्गुमेंट्स के बाद ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. रिप्लाई इन चैट बॉक्स कौन सा होगा? लेट्स सी द चैट बॉक्स. क्या है? फोर्थ, सेकंड, फोर्थ कहां से आ गया? सेकंड. सी फोर्थ में क्या मिस्टेक है? करेक्ट वन इज, लेट मी सी कौन सा करेक्ट है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग फर्स्ट करेक्ट है. ठीक है. क्यों? क्योंकि सेकंड में स्ट्रिंग्स दिया, हम लोग स्ट्रिंग्स नहीं लिखते, स्ट्रिंग लिखते. ये मिस्टेक है. ओके. थर्ड में क्या दिया? मेन ही नहीं है, तो वही खत्म होगा बात. ओके. फिर फोर्थ में पी कैपिटल नहीं होता है. तो करेक्ट सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कौन सा? एकदम फर्स्ट वाला है. फर्स्ट विमला फर्स्ट. ओके. पब्लिक पूरा स्मॉल में है, देन स्टैटिक पूरा स्मॉल में है, वॉइड पूरा स्मॉल में, मेन पूरा स्मॉल में,
और स्ट्रिंग्स नहीं होता है, क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। ये लाइन में ओनली वन कैरेक्टर इज कैपिटल। कौन सा है वो? स्ट्रिंग का एस है। ओके, गार्बेज कलेक्शन अभी तक तुम लोगों ने पढ़े नहीं हो। गार्बेज कलेक्शन मीन्स वो मेमोरी को क्लीन अप करना। ठीक है, अभी के लिए मैंने टिक मार्क कर, गार्बेज कलेक्शन हुआ नहीं है अभी। ये बताओ, विच वन इज ट्रू अबाउट अ कंस्ट्रक्टर? सब ट्रू है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, all of the above. A constructor must have the same name as the class. First true है। A constructor used to create object, means जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। ओके, a constructor may be declared private, प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऑल ऑफ दी अबव, क्या आंसर करेक्ट है? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, बिकॉज ऑल दी 3 पॉइंट्स आर करेक्ट। सुपर कीवर्ड नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं भी नहीं बता रही। सुपर स्टैटिक वेरिएबल बताओ। इन जावा स्टैटिक वेरिएबल यूज टू कॉमन प्रॉपर्टीज टू ऑल ऑब्जेक्ट, get persistent value between different method call, it gets memory only once in a class at the time of class loading. See, all are correct because static variable जो होता है refer common properties all object, means तुमने एक बार static कर दी, fix कर दी, जितने भी ऑब्जेक्ट they will get the same property only, they will get the same property। बस स्टैटिक कर दी कि कांस्टेंट हो गया ना। गेट persistent value between different method call, कैसा वैल्यू मिलेगा? persistent value। व्हाट इज persistent value? सी जब हम लोग मेथड कॉल करेंगे तो हम लोग को सेम वैल्यूज ही मिलेंगी, सेम ही मिलेगी ना, बिकॉज स्टैटिक है। जितने बार मेथड कॉल करो स्टैटिक का, वी विल गेट दी persistent value। पॉइंट्स याद कर लो उसके। थर्ड कौन सा? इट गेट्स मेमोरी ओनली वंस। सी कितने बार भी कॉल करो पर मेमोरी कितने बार मिलता है स्टैटिक वेरिएबल को? एक ही बार मिलता है, बिकॉज वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है। मेनी टाइम्स वी कैन यूज, बाय इनिशियलाइज कितने बार होता है? एक ही बार कांस्टेंट हो जाता है स्टैटिक लगाते हैं। तो इट गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन ए क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ओके, ऑल आर करेक्ट। इंस्टेंस मत देखो, ये वाला बताओ। which is a logical operator in Java that works with a single operand? एक ही ऑपरेंड पे चल जाता है, कौन सा है वो? लॉजिकल नॉर। सी लॉजिकल एंड पता है हम लोग को, लॉजिकल और है। एक्सक्लूसिव और मींस एक्सॉर, एक्सॉर हो गया। लॉजिकल नॉट भी है। एक ऑपरेंड पे कौन सा चल सकता है? लॉजिकल नॉट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या रहेगा आंसर? बोथ। एक ऑपरेंड जैसे ए बी, एक ऑपरेंड ए बी लिखूंगी तो 2 ऑपरेंड हो गए। ए बी सी लिखेंगे तो कितने ऑपरेंड हो गए? 3 ऑपरेंड हो गए। ए टू डी लिखेंगे तो कितना ऑपरेंड हो गए? 4 ऑपरेंड। सबको पता है तो आंसर। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है, लॉजिकल नॉट। ठीक है, अगर तुम ए के आगे लॉजिकल नॉट का सिंबल लगा दोगे तो एक ही ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट है ना। एंड करने के लिए 2 ऑपरेंड, जो 1 1 1 0 ऐसा। और के लिए भी, एक्सऑर के लिए भी 2 ऑपरेंड, ए और बी 2 लगेगा, बिकॉज 2 वैल्यूज रहेंगे। लॉजिकल नॉट का हम लोग अपोजिट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है ना पर लॉजिकल नॉट। ये बता दो चलो। डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल। डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। हाँ ठीक है, रीड कर लो फिर। डू व्हाइल लूप executes a statement inside of it at least once even if the condition, क्या दिया आगे? even if the condition is false। यही होता है ना, डू व्हाइल लूप executes a statement inside of it at least once even if the condition is false। अब बाकी के 3 रीड करो। ये डिफरेंस बता रहा है क्या? व्हाइल लूप डिफरेंस बता रहा है व्हाइल एंड डू व्हाइल। व्हाइल एंड डू व्हाइल का डिफरेंस यहाँ बता रहा है? नहीं, यहाँ बता रहा है। इसमें क्या लिखा? व्हाइल लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ इट एटलीस्ट व्हेन द कंडीशन फॉल्स। नहीं होता ना ऐसा? यस राइट, सेकंड वाला करेक्ट है। ये बताओ, which is the arithmetic operator in Java that gives the remainder of division?
हाँ, रिमाइंडर के लिए कौन सा सिंबल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड, यस राइट। ये क्या रिमाइंडर का सिंबल है, राइट? हाँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा हैज व्हिच associativity? ओके, तो अरिथमेटिक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मींस माइनस माइनस। इंक्रीमेंट करने पे हम लोग क्या होते हैं, आगे पहुंचते हैं, एक step आगे पहुंचते हैं ना इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में एक बैक जाते हैं। आगे पहुंचना मतलब राइट के लेफ्ट, आगे जाते हैं एक स्टेप इंक्रीमेंट में, और डिक्रीमेंट में एक स्टेप पीछे जाते हैं। और बताओ राइट और लेफ्ट क्या हो रहा है, सोचो थोड़ा। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन ही नहीं है तो फिर जाने दो। अच्छा, गायब हो गया ऑप्शन। राइट टू लेफ्ट, राइट ना। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में क्या एसोसिएटिविटी है? चार टाइप का एसोसिएटिविटी दिया है, एसोसिएशन दिया चार टाइप का। इंक्रीमेंट एक स्टेप आगे जाते हैं, डिक्रीमेंट एक स्टेप पीछे। समझ रहे हो ना? एक वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, जैसे 2 का 3, डिक्रीमेंट में 2 का 1 हो जाएगा। पहले राइट जा रहे इंक्रीमेंट में राइट साइड, और डिक्रीमेंट में लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा? राइट टू लेफ्ट आएगा। यस राइट, अरुण सरफराज। चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ किसका इफ एल्स सिंटैक्स में से। इफ एल्स सिंटैक्स रॉन्ग बताने हैं, रॉन्ग। इफ एल्स सिंटैक्स का रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? रॉन्ग, हाँ रॉन्ग, राइट नहीं होता। फर्स्ट में इफ और एल्स भी है, सेकंड में सिर्फ एल्स है, थर्ड में इफ और एल्स है, फोर्थ में इफ एल्स एल्स दे सकते हैं। तुम लोग बताओ इफ एल्स सिंटैक्स में कौन सा रॉन्ग है? थर्ड वाला मैम। थर्ड वाला, फिर सेकंड वाले को क्या हो जाएगा? सेकंड वाले में इफ नहीं है, सिर्फ एल्स है। एक ही बताना है, एक ही, दो नहीं बताना। ए बी सी डी। कैसे ये होगा? बी है। हाँ, उसमें इफ नहीं है ना। इफ ही नहीं है, क्या पूछा है? रॉन्ग। इफ एल्स का सिंटैक्स कौन सा रॉन्ग है? रॉन्ग। बाकी का अदर थ्री देखोगे तो राइट है वो। ये रॉन्ग है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, इफ ही नहीं है। बस कुछ ऑप्शन देने का नीड ही नहीं है, सेकंड वाला आएगा। ओके, अभी गौरी थर्ड कहाँ से आ गया? गौरी सेकंड ना, किधर है गौरी? हाँ सेकंड है। ओके, टू सक्सेसफुली ओवरलोड अ मेथड इन जावा द मेथड नेम मस्ट बी सेम सेम से डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, नन। क्या आएगा? सेम आएगा। और कभी कौन है ये सेम और डिफरेंट? सिर्फ सेम ही आएगा। अगर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही क्या है, क्या रूल है? मेथड के नेम सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं चलेगा। पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं, डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, बट मेथड के जो नेम है वो सेम होना चाहिए, ये रूल है। तो सेम और डिफरेंट नहीं आएगा। रूल मीन्स रूल, मैंडेटरी, यू कांट चेंज इट। ओके, क्या आएगा? सेम। हो गया। अच्छा लगा आंसर कवर करके? ऑलमोस्ट आई तुमको सब आंसर्स पता ही थे, तो अच्छी बात। दैट मीन्स तुमको लेक्चर मतलब समझ में आ रहा है। अगर एमसीक्यूज में होता है एग्जाम तो ऐसे ही, मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बन रहे, वो आइडिया मिला हुआ तुमको। प्रैक्टिसिंग बोथ दी वेज, हाँ, एमसीक्यूज और थियरी वाला भी। इसलिए असाइनमेंट्स लिखना जरूरी है। असाइनमेंट्स आपने अपलोड किए? अभी चेक करूं मैं वो क्लासरूम में, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। देखो अभी चेक करते हैं। ठीक है, आज अपलोड करो उसको। गूगल क्लासरूम। ये है जावा।
असाइनमेंट 4 क्वेश्चंस थे ना, फीचर्स ऑफ जावा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग है ये अभी चला गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन। 20 ने किया है। यहाँ कोई है ऐसा जिसने अपलोड नहीं किया अभी तक? तुम और कौन है? जेनिशोर, आज कर दो जिसने नहीं किया। 20 स्टूडेंट्स ने किए अपलोड। कहाँ पे स्टॉप किए थे उन्होंने? एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट किए थे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम चला गया। एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा, ठीक है। सी कितने टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स है? एवरीवन सी द स्क्रीन नाउ। अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। 4 टाइप्स के, ओके। प्राइवेट है, डिफॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है। एक बार गो थ्रू करो डेफिनेशन, नोटबुक में लिखे दे रहा हूँ, लिखे थे कि नहीं? हाँ, इसको रीड करो। रीड ऑल दी 4 definitions: प्राइवेट, डिफॉल्ट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। Take 2 minutes, go through all the definitions. हाँ, टेबल भी ड्रॉ किए थे, राइट, टेबल ड्रॉ किए थे उस दिन। प्राइवेट जो है विद इन क्लास है ओनली, बाकी सब अदर क्या नो है। डिफॉल्ट में विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड वाले नो है, ओके। प्रोटेक्टेड में सब यस है, सिर्फ आउटसाइड पैकेज है सिर्फ, तो नो है। पब्लिक में ऑल यस है, एक्सेसिबल टू ऑल। पब्लिक मीन एक्सेसिबल टू ऑल, एक्सेसिबल एवरीवेयर, ओके। पब्लिक में सब यस आएगा। तो ये भी देखे थे हम लोगों ने प्राइवेट का। प्राइवेट, व्हाट इज प्राइवेट? सी, अगर हम लोग प्राइवेट क्लास को भी प्राइवेट बना सकते हैं ना, लिसन ना, हम लोग क्लास के आगे भी प्राइवेट लगा सकते हैं, उसके डेटा मेथड के आगे भी प्राइवेट लगा सकते हैं, कोई वेरिएबल के आगे भी वी कैन अप्लाई प्राइवेट कीवर्ड। बट ये प्रोग्राम में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग प्राइवेट कीवर्ड ऑन वेरिएबल एंड मेथड। वेरिएबल एंड मेथड, वेरिएबल विच वेरिएबल? data variable, okay. Message is also private, right? That means if we are creating one more class, एक और class create करें तो we can't use private you can say private objects बोल दो, दोनों भी object ही ना, message और data। we can't access private objects in another class, यही है ना। outside the class we can't access the private objects, यही है। तो अगर तुम इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट, अगर यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना करने का, वी आर क्रिएटिंग वन मोर क्लास, यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बना रहे, और देन टू कॉल दिस डेटा एंड मैसेज, व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट बना दिए, सबको क्लियर है ना ये लाइन? देन प्रिंटिंग में हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, दोनों को कॉल कर रहे, तो वी विल गेट, क्या मिलेगा हम लोग को? ये रन किए थे कि नहीं किए थे? करो क्या फिर से? ये प्रोग्राम है जस्ट वी आर शोइंग द यूज ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। प्राइवेट कीवर्ड ये होता है कि आउटसाइड द क्लास वी कांट यूज द प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स को है वी कांट यूज आउटसाइड द क्लास। तो ये प्रोग्राम में दिखा रहा है, इफ यू आर ट्राइंग टू डू सो, क्या होगा? इट विल लीड टू द एरर आ जाएगा, ओके। अभी प्रोग्राम को कौन से नाम से सेव करना चाहिए? जहाँ पे मेन मेथड, यहाँ पे मेन मेथड है। मेन मेथड कहाँ पे? सिंपल में, ओके। फाइल सेव, ई में आई एम सेविंग दी फाइल, ओके। सिंपल नाम के बहुत हो गए तो रिप्लेस पूछेगा ही। सिंपल डॉट जावा, सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स आ जाएगा। देन सेव में रिप्लेस पूछेगा बिकॉज ये नेम के फाइल बहुत बन गए इसलिए, ओके। अभी क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कौन से लोकेशन में हूँ मैं अभी? सी में हूँ ना, कहाँ पे जाना पड़ेगा? लोकेशन ऑफ सेव्ड फाइल, जहाँ सेव किया है। तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है जहाँ तुम सेव करोगे, ओके। नाउ टू कंपाइल जावा सी
क्लास नेम डॉट जावा, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा। क्लास नेम क्या है, सिंपल है। ओके हाँ क्या आया देखो, रीड द एरर, डेटा हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए। यहाँ पे तुम यहाँ पे प्रिंट में नहीं लिख सकते, प्रिंट में डेटा लिया है ना, क्योंकि डेटा क्या है, प्राइवेट एक्सेस है उसका ए में, यू कांट यूज आउटसाइड द क्लास। एरर थ्रो कर रहा है ना, राइट। सेकंड में क्या लिख रहा है, मैसेज, मैसेज इज प्राइवेट एक्सेस ही नहीं, तो मैसेज को भी तुमने प्राइवेट कीवर्ड अप्लाई की हो, राइट। तो शो हो गया प्राइवेट कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, राइट। तो प्राइवेट कीवर्ड जो है, इफ यू डिक्लेयर एनीथिंग प्राइवेट, यू कांट यूज दैट ऑब्जेक्ट इन outside the class, you can say you can't access the private object outside the class, okay, outside the class। क्लास भी हो सकता है, पैकेज भी हो सकता है, कुछ भी, मीन उसका जो एक्सेसिबिलिटी है प्राइवेट कीवर्ड का, वो विद इन दी क्लास है जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है। मीन्स का एक्सेसिबिलिटी किसके अंदर है, सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर कहीं पे भी नहीं, यहीं पे डिक्लेयर हुआ है ना। इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, यही बोलेंगे ना हम लोग, इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर, मीन जहाँ पे डिक्लेयर किया है वही क्लास में तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। मैम ये प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे थे, हुआ अच्छा ये देखेंगे हम लोग, प्राइवेट लगाया था। नाउ नेक्स्ट कौन सा कीवर्ड है, चलो डिफॉल्ट देखते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट मीन्स इफ यू डोंट यूज एनी मॉडिफायर, इट इज ट्रीटेड एज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। सी अगर तुम कोई मॉडिफायर यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो अपने आप कौन सा कीवर्ड लेता है, डिफॉल्ट कीवर्ड लेता है। ओके सो डिफॉल्ट मॉडिफायर जो है, इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन पैकेज। कहाँ पे भाई, पैकेज क्या होता है समझ में आएगा, स्लो स्लो सेंटेंस याद रखो, डिफॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड दी पैकेज। कीवर्ड याद रखो, नोट डाउन कर लो, इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन दी पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड दी पैकेज। ओके नाउ सी, ये प्रोग्राम के थ्रू समझ में आएगा। पैकेज का वी विल नॉट गो इन डिटेल नाउ, क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज थर्ड यूनिट में पैकेज का चैप्टर है। कहाँ पे है, थर्ड यूनिट में। तो ये बस ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए डिफॉल्ट का थोड़ा देख लेते हैं पैकेज के। ओके डेफिनेशन क्या है इसका, इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन दी पैकेज, आउटसाइड द पैकेज क्या नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। ओके नाउ सी दी प्रोग्राम, सिर्फ इतना देखो, इतना सबके समझ में आ रहा होगा। एक क्लास बना दी है, क्लास का नेम वी हैव टेकन ए, एक मेथड क्रिएट कर दिए, मेथड नेम इज msg, राइट। देन ये मैसेज मतलब ये मेथड का ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब वी आर प्रिंटिंग एनीथिंग, यहाँ पे व्हाट वी आर प्रिंटिंग, हेलो हेलो। अभी यहाँ पे समझो पैकेज, सी व्हाट इज पैकेज, इन शॉर्ट वी कैन सी दो टाइप्स के पैकेज होते हैं, एक होता है सिस्टम डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड। थर्ड यूनिट में फिर से देखेंगे, अभी के लिए समझो, एक होता है सिस्टम डिफाइंड पैकेज, एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज मींस जैसे अभी तुम फोल्डर क्रिएट करते हो कि नहीं, कोई भी फोल्डर डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, तो यूजर डिफाइंड पैकेज मींस एक टाइप का फोल्डर है, पैकेज एक टाइप का फोल्डर है। तो यूजर डिफाइंड पैकेज मींस तुम कोई भी पैकेज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसे लिखती हूँ PACK, तो PACK नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट करने के लिए पैकेज इज द कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड है, पैकेज कीवर्ड है, और ये क्या है, पैकेज का नाम है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास इज द कीवर्ड, देन यू कैन गिव द क्लास नेम। ओके तो पैकेज का नेम कुछ भी लो, पैकेज इज द कीवर्ड टू क्रिएट दी पैकेज। तो ये लिखते PAC नाम का, PACK का नेम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके तो सिस्टम डिफाइंड कितने टाइप्स के पैकेज मैंने बताई, टू टाइप, सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। अभी ये सब यूजर डिफाइंड है, मींस यूजर इज क्रिएटिंग ना, पैक, माई पैक, ABCD SYD एनीथिंग, वो यूजर डिफाइंड है, इट इज क्रिएटेड बाय द यूजर। मैं यूजर हूँ तो आई एम क्रिएटिंग दिस पैक एंड माई पैक, ठीक है। मीन और सिस्टम डिफाइंड ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, तुमको कुछ वो वाला याद आ रहा है, यूटिल का याद आ रहा है, यूटिल लिखा था जावा डॉट यूटिल, तो यूटिल
जो एरे लिस्ट है हमारा, एरे लिस्ट क्लास, एरे लिस्ट पता है ना, देखे थे। तो एरे लिस्ट क्लास कौन से पैकेज में डिफाइन है? जावा तो मेन पैकेज है, मेन फोल्डर है, राइट। तो सब पैकेज कौन सा? यूटिल में एरे लिस्ट डिफाइंड हुआ है, ओके। तो मैं उसको पैकेज क्यों बोल रही हूँ? ये सिस्टम डिफाइंड पैकेज है। यूटिल जो है हमारा वो क्या है? सिस्टम डिफाइंड है। उसको मैंने डिफाइन किया ना? नहीं, जावा का जो सिस्टम है उस पर डिफाइन किया, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसको डिलीट नहीं कर सकते। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द यूजर। ये कौन सा डिफाइंड है? सिस्टम डिफाइंड है, ओके। जैसे यूटिल हो गया, ठीक है। यूटिल के अंदर बहुत सारे, सिर्फ एरे लिस्ट डिफाइन नहीं है, मेनी क्लासेस आर डिफाइंड इन यूटिल पैकेज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस, आईओ पैकेज होता है, वो हम लोग विल सी इन द थर्ड यूनिट डिटेल में क्या है। अभी समझो डेफिनेशन क्या है डिफॉल्ट का, मैं इतना बताऊंगी। डिफॉल्ट मॉडिफायर का डेफिनेशन क्या है, रीड करो एक बार। इट इज एक्सेसिबल विद इन दी पैकेज, आउटसाइड दी पैकेज क्या है? एक्सेसिबल नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोग्राम समझो, एक पैकेज क्रिएट करो, तो डेफिनेशन में पैकेज आ रहा है, तो लेट्स क्रिएट वन पैकेज, राइट। पैकेज कीवर्ड लिखो और कोई भी पैकेज का नाम दे दो, और क्या लिखना है? सेमीकोलन, सेमीकोलन लिखेंगे ना टर्मिनेट करने स्टेटमेंट। एक क्लास क्रिएट कर दिए, क्लास के अंदर एक मेथड ले लिए, ठीक है। और मेथड के अंदर यह प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट हेलो, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या करें? वन मोर पैकेज वी आर क्रिएटिंग। यहाँ से समझो, हाँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, यहीं से समझते हैं। सुनो, एक और पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, माई पैक। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मुझे शो करना है ना, कि जो डिफॉल्ट है वो आउटसाइड दी पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते। तो माई पैक चलो आउटसाइड पैकेज है, नहीं, एक और क्रिएट करते हैं, ठीक है, माई पैक नाम का। अभी मुझे क्या करना है, ये मेरे प्रोग्राम में आई वांट टू यूज द फीचर ऑफ दिस क्लास ए। क्या करना है? क्लास ए का मेथड एक्सेस करना है मुझे। तो एक्सेस करने के लिए पहले इसको कॉल करो, इसको, इसके पैकेज